Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today, date is 9 December 2021 and I am teaching you chapter number 19 and name of the chapter Towards Independence. So let's do little recapitulation student what we have done in the previous video. So in the previous video student we discussed the role of Mahatma Gandhi. Okay, in 1950 Mahatma Gandhi returned from South Africa and after returning to India he don't join the uh, political party. First thing what he has done, he traveled all over the country because Gandhiji want to know the problems of the people. Okay, so what he realized that in all part of the country the poor people lot of suffering to the poor peoples, and not only due to British rule. Okay, he was very shocked to see that the people are suffering to the British rule also, and there is one more thing these peoples are suffering, that is the social evils of the society. Okay, like a caste system and religious differences, there is a lot of differences between the people belonging to different caste and religions. So these, and at that time even people uh, drink अल्कोहल आल्सो, उस समय में लोग बहुत ज़्यादा नशा भी किया करते थे. ठीक है, तो ये सब गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश रूल से तो गरीब लोग, पीपल, poor peoples are suffering lot of due to the British rule. Even they are also suffering due to the social evils of the society, like caste system, religious differences and drinking of the alcohol. Okay, now see, so Gandhiji decided, after seeing all these things, Gandhiji decided to fight against the British administration also, and even he fight against the social evils of the society. ठीक है, गांधी जी ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से तो फ्रीडम की फाइट के लिए फाइट स्टार्ट ही कर दी, इसके साथ साथ जो हमारे सोसाइटी में सोशल इविल्स थे, सो गांधी जी फाइट अगेंस्ट दिस सोशल इविल्स आल्सो. सो नाउ लेट डिस्कस विद द जलियांवाला बाग मास्कर. So student, first of all try to understand what is the reason for this uh, Jallianwala Bagh massacre. So reason is that the reason behind is the in 1919, in 1919 the British passed Rowlatt Act. Okay, what is the reason behind this student? In 1990 the British passed a new law that is known as Rowlatt Act, and the so according to this law, ठीक है, according to this law not more than 5 people gathered together in any place. ठीक है, अब क्या था कि नाउ दे डोंट वांट, ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस में यूनिटी हो, बिकॉज फ्रॉम मेनी ईयर्स they are ruling on our country, because they divide the people
ड्यू टू कास्ट सिस्टम एंड ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेस। ठीक है, तो उन्होंने इतने साल से ब्रिटिश पीपल बहुत इजीली हमारी कंट्री पे रूल कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनकी पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल। लोगों को कास्ट के बेस पे आपस में हमेशा लड़ाते रहना, ठीक है, लोगों को रिलीजन के बेस पे आपस में लड़ाते रहना। सो इन दिस मैनर ये बहुत अच्छे से इतने सालों से इंडिया पे रूल कर रहे थे। नाउ अमंग द यूनिटी, by seeing the unity of the Indian peoples, especially the unity between the Hindus and Muslims, okay, especially when they see the unity of Hindus and Muslims, then they are very frightened, वो डर गए थे। ठीक है, वो डर गए कि अगर धीरे धीरे लोग ये डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के लोग अगर आपस में यूनाइट होने लगे, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द पीपल ऑफ इंडिया। So that is the reason to stop all these activities. They passed a new act that is known as Roll Act in 1919, according to which not more than 5% can gather on any place. So due to this Roll Act, the people are very angry. They are very against this Roll Act, क्योंकि अब क्या है, इंडिया में भी पार्टीज थी, लीडर्स थे, वो leaders who can motivate the people of India so they can stand together, they unite together and struggle for the independence of their country, that is India. So अब जब इन्होंने रॉल टैक्स लगा दिया तो इंडियंस जो थे और भी ज्यादा एंगर हो गए। ठीक है, ड्यू टू द लॉ विच इज पास बाय द ब्रिटिश पीपल। ओके, सो and they start doing meeting against this Rolt Act which is passed by the British people in 1919. Okay, now what's happened on April 13, 1919? Many people gathered in Jallianwala Bagh. So first of all, student, you must understand where is Jallianwala Bagh. So if you visit Amritsar, in Amritsar we are having a golden temple. Just near to that temple there is a bagh, there is a garden, that is bagh, that is known as Jallianwala Bagh. So this is the time of on 13th April, okay, on 13th April 1919, this is the day when the people are celebrating the festival, that is Baisakhi festival. Okay, festival, what was the name of the festival? Baisakhi festival. So this festival is known, also known as the harvest festival. जब फसलें पक जाती हैं खेतों में, ठीक है, तब उसके खुशी में जो फार्मर्स होते हैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिस नेम ऑफ द फेस्टिवल दैट इज वैसाखी फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल इंडिया के अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बाय डिफरेंट नेम्स मनाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। नाउ जो हाँ भाई वैसाखी थी, तो वैसाखी थी तो मेला भी लगता वहाँ, तो people from many different parts of the country they come to Amritsar, okay, at this occasion of the festival, that is the Baisakhi festival. And now slowly the people thought that today is the festival, so the British people they will not take any action. उन्हें ऐसा लगा कि आज तो फेस्टिवल है, तो ठीक है, रॉल टैक्ट है, लेकिन आज फेस्टिवल है तो फेस्टिवल तो हमें वो सेलिब्रेट करने ही देंगे। ठीक है, तो स्लोली थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स दे आर कलेक्टेड इन द जलियांवाला बाग, और वहाँ पे पब्लिक मीटिंग होने लगी अगेन। सो सम इन्फॉर्मर्स, आपको पता था कि ब्रिटिश इतना अच्छा रूल इंडिया पे क्यों कर रहे थे, कि हमारे लोग ही ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या इन्फॉर्मर्स भी थे, वो ही खबरें पहुंचाते थे। सो सम इन्फॉर्मर्स टेल द टू जनरल डायर अबाउट दिस meeting that many people, thousands of people are collected in the Jallianwala Bagh and they are conducting a meeting. So what happened, this British officer, his name was General Dyer, his name was General Dyer. So
when he listened that many peoples collected in the Jallianwala Bagh and they are doing a public meeting, so he become very angry. He take his soldier, okay, and he visit to the Jallianwala Bagh. With his soldier, he visit to the Jallianwala Bagh and blocked it only entrance. और उस बाग में जाने के लिए एंट्रेंस का एक ही रास्ता है, तो वहां से ये अपने पूरे सोल्जर्स को लेके घुस गया. अब लोग कहां से जाते, ठीक है. और इवन स्टूडेंट, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही वाज सो रूड दैट इवन ही डोंट वार्न द पीपल. ठीक है, ये इतना रूड था कि इसने लोगों को वार्न भी नहीं किया कि ऐसा होता है ना कि आप यहां से चले जाओ, रॉल्ट एक्ट है, आप एक्ट के अगेंस्ट हो, 5 से ज़्यादा पीपल्स नहीं एक संग खड़े हो सकते, आप हजारों की संख्या में जुट गए हो तो आप अपने अपने घर चले जाओ, नहीं तो हम फायर भी कर सकते हैं. लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया. ही इंटर इन द बाग, इन द जलियांवाला बाग, एंड ही अलाउड, or you can say he ordered his soldier to fire on the people so who are in the public meeting. So student, now see the people of all age group gathered there. उसमें ओल्ड पीपल्स भी थे, यंग पीपल्स भी थे, लेडीज भी थी, स्मॉल किड्स भी थे, क्योंकि ये डे क्या था, फेस्टिवल वाला डे था. 13 अप्रैल 1919, इट इज अ डे ऑफ बैसाखी. ओके, एंड द जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू फायर. सो ड्यू टू दिस इंसिडेंट मैनी पीपल गिव अप देयर लाइफ एंड देयर इज नो अदर गेट सो दैट द पीपल कैन रन आउट ऑफ द पार्क. ठीक है, उस पार्क का सिर्फ एक एंट्रेंस था जहां से वो अपने सोल्जर्स को लेके आया था, एंड देयर इज नो अदर गेट इन द पार्क टू एस्केप एंड सेव द लाइफ. सो लोग इधर उधर भागने लगे. ठीक है, बहुत घायल हुए, बहुतों को चोट लगी. और वहां आप कभी अमृतसर जाओगे, वहां एक वेल था, एक कुआं था. तो अब लोगों ने बुलेट से बचने के लिए कई लोगों ने तो वेल में ही कूदना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, सो मैनी पीपल डाई इन दिस इंसिडेंट. ये जो इंसिडेंट हुआ था बेटा, इसमें बहुत ज्यादा पीपल क्या हो गए थे, डाई कर गए थे. द होल कंट्री वॉज शॉक्ड बाई दिस इंसिडेंट. ठीक है, अभी पूरी कंट्री क्या शॉक्ड हो गई थी. ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने जो एक्शन लिया अगेंस्ट द ड्यू टू रॉल्ट एक्ट, what action has been taken by the British government, so everyone in the country they are shocked. No one has, किसी ने ये बिलीव नहीं किया था कि मतलब इतना ऐसा एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि इंडियंस दे डोंट हैव एनी वेपन. ओके, दे डोंट हैव एनी वेपन एंड इवन दे डोंट हैव एनी प्लेस टू एस्केप फ्रॉम देयर. There is only one entrance gate and on that entrance gate all the soldiers are standing. Okay, so due to this many of the people give up their life, and even many, there is a well in that park, many people jump or fall in the well also. Okay, so this is the incident of Jallianwala Bagh. Okay, so in this many people lost their life, man, woman, you can say kids also, many, all children also, they die because they are all present in the Jallianwala Bagh. ठीक है, so this is the incident which took place in 1919, and this, the reason of this incident is due to the Rowlatt Act which is passed by the British government in 1919, that not more than 5 people can stand on a place, or they can meet or gather on the place. Okay, so now did you know it is given why did people gather at the Jallianwala Bagh on April 13, 1919? I hope now this answer is clear to all of you. That is the day when they celebrate the festival of a Baisakhi, and that is the reason many peoples gathered in the Jallianwala Bagh, क्योंकि वो फेस्टिवल का डे था, लोग इंजॉय करने के लिए भी. ठीक है, बहुत से लोग वहां पे गैदर्ड हो गए थे. ठीक है, सो दिस इज द रीजन. ओके, अब देखो, नाउ आफ्टर दैट
अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, अब गांधी जी ने जो 1920 में आफ्टर दिस इंसिडेंट, दैट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, आफ्टर दिस इंसिडेंट द न्यू movement which is launched by Mahatma Gandhi is that the non-cooperation movement। और थोड़ा सा और भी बता देता हूँ तुम लोगों को जलियांवाला बाग का। अब देखो बेटा, उसी में एक बच्चा रहा होगा, उसके भी पेरेंट्स हो सकते होंगे, इज नेम वाज उधम सिंह। ठीक है, ये जो जनरल डायर था, ये फिर इसको ब्रिटिश वापिस भेज दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इतने लोग मर गए तो पीपल्स आर वेरी एंग्री, सो टू कंट्रोल द पीपल ऑफ इंडिया, इसे फिर आफ्टर दैट इससे क्या करते हैं, ब्रिटिश वापिस कर दिया जाता है। ठीक है, भेज दिया जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत एंगर थे इससे। ठीक है, तो अंग्रेजों को लगा, ब्रिटिश पीपल को लगा कि कहीं भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इंडिया की पॉपुलेशन जो क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। अगर सारी पब्लिक लड़ाई पे उतर आती तो इतने ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। तो जनरल डायर को ब्रिटिश भेज दिया गया। तो उसी में एक था क्रांतिकारी, आप कह सकते हो फ्रीडम फाइटर कह सकते हो, उधम सिंह। ठीक है, तो जब ये बड़ा हुआ उधम सिंह, ठीक है, ये जब बड़ा हुआ तो ये इसने जनरल डायर को जाके ब्रिटिश में वहां पे जाके गोली मारी थी, और उसके बाद फिर अपने आप को अरेस्ट कर दिया था। ये नहीं कि गोली मारने के बाद भाग गया, क्योंकि देखो बेटा, ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा और अपने देश के प्रति, मतलब अपने देश की फ्रीडम को पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे। ठीक है, इवन दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ आल्सो, अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए जो इंडियंस थे वो बिल्कुल रेडी थे। अब यहां से बिल्कुल देश वाली भावना आ गई, जो यूनिटी आ गई कि अब लोग ये भूल गए, अब जो इतने साल से ओल्ड चला आ रहा था, जिसके लिए बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स और गांधी जी ने भी वर्कआउट किया, नाउ दैट थिंग्स वर्कआउट, वो चीजें अब वर्क में दिखने लगी। अब यहां से लोगों ने इस कांड के बाद और भी ज्यादा लोगों में इतनी यूनिटी आ गई, जो उन्होंने इतने साल से लोगों को आपस में डिवाइड करके रखा था, कास्ट सिस्टम, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से। अब स्लोली एट दैट टाइम बेटा, द इंडियंस फॉरगेट ऑल दोज थिंग, दे स्टैंड टुगेदर। ऑल द इस इंसिडेंट में बहुत से मुस्लिम भी मरे थे। तो इसके बाद जो इंडिया के जो हिंदूज और मुस्लिम्स की इतनी ज़्यादा यूनिटी देख के दे आर वेरी फ्राइटन्ड, ये जो ब्रिटिश पीपल थे अब ये डरने लगे। ठीक है, इंडिया और अरे हिंदूज और मुस्लिम की यूनिटी को देख के अब इनको लगा कि अब, क्योंकि पहले ये हमेशा लड़वाई रखते थे हिंदूज और मुस्लिम्स को। ठीक है, लेकिन नाउ व्हेन दे सी ऑल द हिंदूज एंड मुस्लिम स्टैंड टुगेदर इन द स्ट्रगल ऑफ द country, then they are afraid of the people of India. Okay, so in this manner slowly now at that time of 1919 में, after this incident in 1990 Gandhi ji give a new movement to India, that is known as non cooperation movement। non cooperation movement, that is non cooperation movement। ठीक है, तो इस मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो, हम कहते हैं ना कि फैमिली में हमें सबको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। ये नहीं है कि आप टोटल मम्मी पे डिपेंड हो। ठीक है, मम्मी भी आपकी कभी सिक हो सकती है, बीमार हो सकती है, तो हमें छोटे छोटे काम में, घर के काम में अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। सोसाइटी में भी मान लो, कई चैप्टर इससे पहले ईवीएस में आपने पढ़े हैं कि अगर आपके सोसाइटी में कोई ओल्ड रहता है तो आप टाइम टू टाइम
उसके घर जा सकते हो, उसको हॉस्पिटल ले जाके मेडिसिन दिला सकते हो, इस तरह हम उसकी हेल्प और कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले ये समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉपरेशन। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।